السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے آپ سے لگاتار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 19واں سیریل ہے. کل ہم نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اس کی ہم وجہ بتائیں گے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ لڑکی کے جو والد ہوتے ہیں وہ نکاح کے وقت میں خود جا کر لڑکی سے پوچھنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں، ایک تیسرے شخص کو پوچھتے ہیں جس کا نام جو ہے وکیل دیا جاتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو راز بتائیں وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے. وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے جو والد ہوتے ہیں نا، یا لڑکی کے گھر والے، آپ دیکھیں کہ جب وہ لڑکی رخصت کرتے ہیں تو پورے لڑکی کے گھر والے روتے رہتے ہیں، روتے نہیں؟ آپ عربوں میں دیکھیں گے تو کوئی ایک آدمی روتا نہیں ملے گا. یہ رونے کا چکر شروع کیسے ہوا ہے؟ وہ رونے کی وجہ سے وہ آخری وقت میں وہ جا کر کے اس سے پوچھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جائے گا تو وہ روئے گا وہاں. وہ اس رونے سے بچنے کے لیے وکیل کا چکر چلایا گیا. یہ روتے کیوں ہیں؟ حالانکہ کوئی رونے کی روایت نہیں ہمارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اپنی بیٹی کو چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو رخصت کیا، کچھ بھی نہیں روئے. آج بھی عرب شادیاں ہوتی ہیں، کوئی نہیں روتا ہے. یہ رونے کا چکر ہندوؤں سے آپ کے ہاں آیا ہے. ان کے ہاں جو رونا تھا وہ صحیح تھا، آپ کے ہاں رونا ایک دم غلط. ان کے ہاں رونے کی وجہ یہ تھی، دو وجہ تھی کہ اب تو خیر وہ ختم ہو گئی ہے وجہ. ابھی بھی بعض جو پرانے ہندو ہیں ان کے یہاں بات واقعی کہ جب لڑکی کی شادی کر دیتے تھے تو پہلی مرتبہ لڑکی جب اپنے سسرال چلی جاتی تھی تو 12 سال 15 سال تک لڑکی جو ہے وہ اپنے میکے نہیں آتی تھی، آنے نہیں دیتے تھے. تو وہ جب 15 سال کے لیے جا رہی ہے تو گھر والوں کا رونا ایک فطری چیز ہے، اس لیے وہ لڑکی والے بیچارے روتے تھے. اچھا، اب وہ جو اسے اسی لیے ہندوؤں کے ہاں اس کو زندہ ڈولا بولتے ہیں، یعنی زندہ جنازہ. کہ یہ زندہ جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، یقینی بات ہے جب تک 15 سال تک بچی گھر میں نہیں آئے گی تو وہ زندہ جنازہ ہی ہے. اس بنیاد پر رویا جاتا تھا. ہم نے پوچھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، ہم نے وہاں سے رونا اٹھا کر اپنے لیے لگا لیا اپنے گلے. اور ہمارے بھی مسلمان مرد جو ہیں، مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں. رونے کی بنیاد بھائی آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز آپ کے یہاں نہیں. بچی جاتی ہے، دوسرے دن آتی ہے، پھر آنا جانا رہتا ہے وہاں 15 سال تک. اچھا، باپ لڑکی کے گھر، دوسری وجہ تھی باپ، خاص کر باپ لڑکی کے گھر نہیں جا سکتا تھا، مطلب سسرال اس کے نہیں جاتا تھا. اور اگر چلا گیا نا تو پانی نہیں پی سکتا تھا. آج بھی ہے، آج بھی جو پرانے ہندو ہیں ان کے یہاں لڑکی کا والد اگر گھر جائے گا اپنی بیٹی کے گھر میں تو پانی نہیں پیے گا. تو یہ ساری وجہ سے وہ باپ اس کو رخصت کرتے ہوئے روتا تھا. اچھا، وہیں سے دوسری جو رسم شروع ہوئی آپ کے ہاں جہیز کی. یہ جو جہیز ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ بھی ایسے شروع ہوا. ہندو دھرم میں یا دنیا کے کسی بھی مذہب میں لڑکی کا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے. نہ قانونی لحاظ سے ہے، اب ہندوستان نے قانون بنا دیا ہے، ورنہ مذہب کے لحاظ سے کوئی قانون نہیں تھا، لڑکی کا کوئی حصہ نہیں تھا. خیر وہ ہم نے بھی لگا لیا اپنے اوپر، ہم بھی لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں لڑکی کو حصہ نہ دینا حرام ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ویسے یہ بھی کہا گیا کہ لڑکیوں کا کتنا حصہ ہے، حرام ہے. جو لوگ کھا رہے ہیں لڑکیوں کا بہن کا حصہ نہیں دے رہے ہیں
चाहे खेत है, उसमें जितनी खेती हो रही है, जो तुम्हारा हिस्से के अलावा बच्ची का हिस्सा उस खेत में है, आपके घर में हराम गल्ला आ रहा है। आप किसी प्लॉट पे रह रहे हैं और उसमें बहन का हिस्सा है, कभी भी नमाज कबूल नहीं होती। नोट कर लें, आज जिस जमीन पर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वो जमीन नाजायज कब्जे के तहत है, तो हमारे यहाँ दारुल का फतवा है कि नमाज कभी भी उस पर कबूल नहीं होती। अदा भले हो जाए, कबूल कभी नहीं होती है। इसी तरह किराए का जो मकान होता है, अगर मकान मालिक कह रहा है कि आप मेरा घर खाली करें, और आप हिंदुस्तान के कोर्ट का सहारा लेकर के जाकर के डिग्री लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मैं घर मकान नहीं खाली करूंगा, अब जितने लोग उसमें नमाज पढ़ते, किसी की नमाज कबूल नहीं होती। मकान मालिक को अख्तियार है, वो मालिक है उस घर का। शराफत से वो कह रहा है कि मैं आपको 3 महीने की नोटिस दे रहा हूं, आप 3 महीने में इंतजाम कर ले, मुझे मकान की जरूरत है। उसको जरूरत हो या नहीं हो, वो मालिक है। अब जब एक किराएदार मकान नहीं खाली करता है, तो इस मकान में किसी की नमाज कबूल नहीं होती है। आप चाहे जितना खुलूस से पढ़ें और चाहे जितना दिल लगा के पढ़ें। इसी तरह मस्जिद है, अगर मस्जिद ऐसी जमीन पर बना दी गई जिस जमीन पर कब्जा नाजायज है और वो जमीन वक्फ की नहीं है, तो जितने हिस्से पर वो नमाज होती, किसी की नमाज उस पर जो है कबूल नहीं होती। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है कि बहुत मशहूर खलीफा हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक चर्च को, उससे पहले चर्च और मस्जिद मिला हुआ था, तो चर्च वालों से मस्जिद वालों ने कहा कि आप अपनी जमीन हमको गिफ्ट कर दें, जो पैसा हो ले लें, हम मस्जिद को एक्सटेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। चर्च वालों ने कहा कि हम ऐसा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम जमीन नहीं गिफ्ट देंगे। मुसलमान हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि अगर चर्च पे किसी ने हाथ डाला या चर्च को तोड़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा, कोड़ी हो जाएगा। उन्होंने ये सारी बातें कही। वो बादशाह वक्त जो है वो गुस्से में आए, उन्होंने कहा सब तोड़ दे, मस्जिद बढ़ाओ। बगैर इजाजत के जबरदस्ती उन्होंने चर्च को तोड़ दिया और तोड़ करके मस्जिद को बढ़ा दिया। जब मस्जिद बढ़ा दी गई, नमाज पढ़ी जाने लगी, खत्म हो गई बात। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब चार्ज संभाला जिस दिन, उन्होंने कहा सबसे पहले मजलूम आए हमारे दरबार में, जिनके जिनके ऊपर इस मुल्क में जुल्म हुआ है, वो एप्लीकेशन लेकर के आवे। तो ये एप्लीकेशन भी आई कि हमारी जमीन पर कब्जा किया गया और हमसे पूछा भी नहीं गया, हमने इजाजत भी नहीं दी और मस्जिद को बढ़ाया गया। मुकदमा चला, मुकदमा में मुसलमान हार गए। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि जितनी दूर में जमीन ली गई है चर्च की, वो वापस की जाए, चर्च वैसे बना करके दिया जाए, और जितने लोगों ने इस इलाके में नमाज पढ़ी है सब अपनी अपनी नमाज दोहरा ले, नमाज हुई नहीं किसी। अब आप बताइए कितना सख्त मसला है। मस्जिद में तो कभी भी 1 इंच भी जमीन कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। नाजायज जमीन पर, गैर की जमीन पर कभी भी मस्जिद को तामीर करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल तो ये सारी चीजें वहां से आई। तो वो जहेज जो आया वो इस तरीके से आया कि जब बाप को ये मालूम था कि मैं अपनी बेटी को 1 पैसा भी नहीं दे पाऊंगा अपनी प्रॉपर्टी में से, तो उसने कहा अब इसकी शादी हो रही, जितना लाद सकते हो लाद दो, क्योंकि बेटों को देना नहीं है बहन को। जब बेटों को देना नहीं है तो बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत है, तो अपनी मोहब्बत का इजहार बेचारे ने क्या किया कि शादी के टाइम पे जितना हो सकता है वो भले कर्जा लेकर के करे दे देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस प्रॉपर्टी में हमारे बेटे लोग जो है कुछ भी हमारी बेटी को नहीं देंगे। वहां से जहेज की लानत शुरू हुई, वरना ना इस्लाम में कोई जहेज था न कुछ। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया उन्हीं का पैसा था अली रजी अल्लाह तआला का, उसे इसे खरीद करके उन्होंने उनके इंतजाम कर दिया, क्योंकि अली का घर पहले से मौजूद नहीं था। वरना इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सारा आज भी अरब में कोई तस्वुर जहेज का नहीं है, 1 पैसे का जहेज का कोई तस्वुर नहीं। हिंदुस्तान में जब लड़की पैदा होती है तो जिस दिन पैदा होती है उस दिन से जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है उस लड़की के नाम पर पैसा जमा करना, जहेज का इंतजाम उस दिन से शुरू करता बेचारा वो, क्योंकि उसको देना है जहेज। केरला वगैरह में तो किलो किलो के लिहाज से सोना मांगा जाता है।
بہرحال یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہوئی ہیں. 2-4 باتیں آج بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے. جب رسموں میں سے ایک رسم ہے، یہ پورے ہندوستان میں بہت سے علاقے میں پائی جاتی ہے کہ جب دلہن گھر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کو قرآن دکھلاتے ہیں. جب گھر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کھول کر کے دکھلاتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آج بیٹا دیکھ لے، زندگی بھر نہیں دیکھنا ہے تجھے. معلوم نہیں کیا دکھلانا چاہتے ہیں قرآن کو. یا یہ کہ یہ بھائی اس قرآن پر عمل کرنا ہے. عمل تو کرنا نہیں ہے. عمل جب مرد ہی نہیں کر رہا ہے تو عورت کیسے کرے گی؟ اگر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت ہے، اور ثواب ہی سمجھ کر کیا جاتا ہے. اچھا، بعض جگہ پہ کیا ہے کہ ایک قرآن لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی کو، اس کو، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں. بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب سب سے بڑی ہے، اس کو اوپر رکھ دینے کا ہے، دوبارہ نہیں اٹھانا ہے. یہ ساری ایسی رسمیں کی جاتی ہیں. بعض یو پی کے بعض علاقوں میں جب 2-3 دن شادی کے ہو جاتے ہیں تو جوا کھیلتے ہیں بیوی کے ساتھ. کون لوگ کھیلتے ہیں؟ دیور لوگ کھیلتے ہیں. پانی میں سکے ڈال دیے جاتے ہیں، گندے پانی میں، مطلب گندے سے مراد پانی کا کلر کر دیا جاتا ہے، تو اس میں سکے ڈال دیے جاتے ہیں. بڑا سا اسٹیپ ہوتا ہے ایسے. وہ سکے ڈالنے کے بعد جو ہے نا، وہ اس عورت کے ساتھ جو آئی ہے دلہن، اس کے ساتھ گھر کے وہ مرد لوگ جو دیور ہیں یا لڑکے لوگ، مطلب بالغ لوگ، سب لوگ ایک ساتھ اس میں جو ہے نا ہاتھ ڈالنا ہے. ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ سکے کا جو نکال، ایک ہی سکہ رہتا ہے، جو سکہ نکال لے وہ سکہ اس کا، وہ چاندی کا رہتا ہے عموماً. اب تو خیر چاندی ختم ہو گئی ہے، تو وہ جوا کھیلا جاتا ہے. سارے میں چکر کیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ عیاشی کرنے کا ایک طریقہ. اگر ایسے ہم کہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ عیاشی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں بولے گا. یہ سب الگ الگ ڈیزائن ہیں عیاشی کے، تو یہ جوا کھیلا جاتا ہے. اب اس میں اختلاط ہوتا ہے، حرام ہے. یہ سب علاقوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورت دلہن گھر پہنچتی ہے تو اس کا منہ دکھایا جاتا ہے، اور منہ دکھانے کے نام پر منہ دکھائی لی جاتی ہے. جب منہ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، تو سب لوگ دیکھیں گے، خالو، ماموں، چچا، بھیا، فلاں، جماع کے، دنیا بھر کے لوگ آ کر کے اس عورت کو منہ دیکھیں گے. اس کو منہ دکھائی کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو نامحرم ہے ان کے لیے بلا کر کے منہ دکھانا بے شرمی کی بات. مزے کی. اچھا، اس میں چکر کیا ہے، لڑکے والے کو ہر لحاظ سے چوسنا ہے پیسے، چاہے وہ لڑکی کے گھر سے چوسے. اب جب یہاں آ جاتی ہے تو منہ تو دیکھا جاتا ہے اس لڑکی کا، اور پیسہ جاتا ہے ساس کے ہاتھ میں. عجیب معاملہ ہے بھائی، جس کا منہ دیکھا گیا پیسہ دوسری کو دے دو، تب تو بات سمجھ میں آ گئے. تو یہ پیسہ لوٹنے کا ایک طریقہ، اور نام لیا جاتا ہے اس سے منہ دکھائی کا. تو حرام کام ہوتا ہے، اور چیٹنگ جو ہے نا وہ اس انداز میں کی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ. بارات، یہ جو بارات جاتے ہیں یہ ہندی لفظ ہے، بارات. یہ بارات کیوں جاتے تھے، یہ تھوڑی سی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. بارات کے پیچھے چکر کیا ہے. جب یہ لڑکے والے جاتے تھے تو 12 دن ٹھہرتے تھے. کہاں؟ لڑکی کے گھر میں. وہ 12 دن ٹھہرتے تھے تو لڑکی والا تو اسی میں اس کی بربادی آ جاتی تھی نا. 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی جاتے تھے. اب وہ 12 دن تک لگاتار تم صرف اس کی خدمت کرتے رہو تو نتیجہ نکلے گا وہ تو ویسے اس کا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جائے گا. تو یہ وہاں سے شروع ہوئی. جانا کیوں پڑا؟ ہوتا ایسا ہے کہ سفر جو ہوتے تھے وہ پیدل ہوتے تھے، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، تو راستے میں چوری ڈکیتی بہت ہوتی تھی. اب وہاں سے باپ کو دینا ہے جہیز. اب یہ جہیز لاد کر کے جب چلتے تھے تو راستے میں لوٹ جاتے تھے. راستے میں ان کو کیا کرتے تھے؟ لوٹ لیتے تھے. اب اس نے ترکیب نکالی لڑکے والے نے کہ ہمارے پاس بھی 100-500 آدمی رہے کہ اگر ایسا معاملہ آئے تو مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. کیونکہ یہی بات ہے، لٹیرے 500 نہیں ہوں گے، لٹیرے ہوں گے 10-12 ہوں گے. تو یہ وہاں سے چکر شروع ہوا. اس لڑکے نے اپنے اس جو اس کو جہیز ملنا ہے اس جہیز کی حفاظت کے لیے اسے بارات کا انتظام کیا، اور وہ سارا برڈن اٹھا کر کے کس کے اوپر ڈالا؟ لڑکی والوں کے اوپر ڈالا. مسلمان جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، رسول اکرم کا طریقہ ہے، اس نے ایک مرتبہ نہیں سوچا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اس نے بھی بارات کا پورا سسٹم کر دیا اٹھا کر کے. اچھا، اب تو ایسا بھی ہے بعض جگہ کہ اگر لڑکے والے جو دیندار ہو گئے ہیں، جماعت پہ چلے گئے ہیں، دین سے لگ گئے ہیں، وہ نہیں بارات وغیرہ کے قائل ہیں،
लड़की वाले भी बाद इतने बदमाश हैं, नहीं मेरी नाक का मसला है, 200 आदमी से कम नहीं आना भाई, वो बोलता लड़की वाला, ताकि लोगों को इलाके में दिखला सके कि मैं बड़ा आदमी हूँ, देखो 200 आदमी को मैंने बोला। इसमें तकब्बुर है और तकब्बुर हराम है। तो ये बारात का सिस्टम भी जो है ना, ये इस तरीके से आया है। और मजे की बात है, यहाँ तो मुझे नहीं मालूम है, वो लड़का वाला जब शादी तय होती है 2-4 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो कहता है देखो भाई बारात, वो या तो ये डिमांड करता, काफी इससे बहस होती है, वो कहते हैं 200 आदमी, नहीं हमारे पास आदमी ज्यादा, हम तो 300 आएंगे। ऐसे बहस काफी बार्गेनिंग होकर के फिर एक नंबर सेट होता है। उसके बाद ये लड़का वाला क्या करता है कि उससे डिमांड करता है, क्या देखो भाई खाना ये खिलाना है, बाकायदा डिमांड की जाती है। भाई आप किसी के मेहमान घर गए हैं, उसको जो अल्लाह तौफीक देगा आपको खिलाएगा। वो कौन सा मेहमान ऐसा है जो तुम्हारे घर आवे और आकर के मीनू पेश कर दे, भाई देखो 3 दिन रहेंगे, ये मेरा मीनू है? ये तो न मेहमानी हुई और न कोई शराफत की बात हुई। और अगर बारात, जब यहाँ तो खैर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यूपी में तो बारात का मतलब कि वो राजा साहब घर पर आ गए हैं, पानी उठाकर नहीं पिएंगे। जब बारात पहुंचती है तो लड़की के पूरे गांव वाले, घर वाले एकदम आगे पीछे बारात के लगे हैं, कोई पानी पूछ रहा है, कोई शरबत पूछ रहा है। क्या मजाल है कि वो उठ करके, और अपने घर में जो है ना कुत्ता भी उसको नहीं पानी देता। और यहाँ पर इसके इतने नखरे हैं बदमाश के कि एक गिलास पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, हाथ दूसरे धुलाना है, खाना दूसरा खिलाना है, और फिर आखिर में नाराजगी हो करके जाना है। नाराज हो जाएंगे कि वो पानी नहीं मिला, वो वक्त पर चाय नहीं मिली, चाय मिली तो उसमें शक्कर नहीं थी। ये सारी कहानियां बना करके जाएंगे। यहाँ तो माशाल्लाह बारात तो पता ही नहीं चलती बारात वाले कौन है, बारात वाले कौन है। और पहले बारात वाले खाना खा लेना है, घर के लोग कोई खाना नहीं खा सकते। जो उसके लड़की के घर वाले आए हैं, मैं उसके कोई आदमी खाना नहीं खा सकता, पहले बारात खाएगी। अब तो खैर थोड़ा सा हम लोगों ने कोशिश की, बाद इलाकों में तो दोनों को मिल, वरना आप खाने नहीं देते थे। लड़की वाले बारात कभी कभी क्या होती, रात की बारात आई, लेट हो गई तो पूरे लड़की के घर वाले ऐसे बेचारे भूखे, बच्चे तो वैसे सो जाते थे। ये सारी चीजें जो हैं मुआशरे में दाखिल की गई। यहाँ के इलाके में एक रस्म होती है, जमगी कहते हैं, शायद जुमा के दिन करते हैं। उसमें सारे लोग उस दुल्हन को लेकर बैठ जाते हैं और फिर वहीं अय्याशी का एक सिस्टम शुरू होता है। 5 जुमा या 6 जुमा या 7 जुमा ऐसा कुछ करते हैं, तो उसमें औरतें बैठ जाती हैं, वो बीच में उनको बैठा लेते हैं और मर्दों को बैठा लेते हैं, फिर उनको फूल पहनाते हैं, सलाह करते हैं। तो ये भी जो है ना वो लगो चीज है। जलवा करना यहाँ भी होता है, यूपी वगैरह में जलवा के नाम पर दूसरी चीज होती है, जलवा नहीं बोलते, दूसरा बोलते हैं कि दुल्हन को इधर बैठा देते हैं, दूल्हा को एक साइड पर, बीच में शीशा रखते हैं और वो शीशे में दुल्हन का मुंह दिखलाया जाता है। अरे वो पहले ही देख चुका है, उसमें क्या दिखला रहे हैं? अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि लड़के लोग, सारे लोग उसको घेर करके खड़े होते हैं जब वो दिखलाते हैं। वहां भी वो अय्याशी का एक क्या है तरीका है। इसी तरीके से ये जो आप पहुंचते हैं, अब तो खैर बाद जगह जब आता है इन्विटेशन तो उसमें लिखा रहता है कि आपकी दवाएं चाहिए, नो गिफ्ट, 1% कार्ड में ऐसा लिख कर आता है। ये न्योता, वहाँ यूपी में न्योता कहते हैं, बिहार वगैरह में न्योता कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको न्योता कहते हैं। तो वो जब खाना खा चुकेगा तो वो एक आदमी बैठ जाएगा वहाँ लिखने के लिए। यहाँ तो खैर क्या है, लिफाफा पकड़ा दिया, अब वो लिफाफे में यहाँ खूब कभी बाप के हाथ में चला जाता लिफाफा, कभी लड़के के हाथ में चला जाता, वो पता ही नहीं चलता लिफाफा गया कहाँ, समझे नहीं? तो भाई अगर आपने मुझे दावत दी है मिसाल के तौर पर, तो ये जो बिल आप पेश करने की बात हुई कि मैं खाना खाऊं 50 रुपए का और 500 रुपए का तुमको बिल थमा दूं, भाई अगर ये दावत है तो दावत में बिल की क्या जरूरत है? अब वो पूरे मुआशरे में वो बिल के तौर पर कभी लिफाफा, अब शराफत से लिफाफा कर देते हैं। यूपी वगैरह में तो अभी भी बाकायदा एक साहब, वो गांव के बड़े शरीफ आदमी होते हैं, जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी तहरीर बड़ी अच्छी होती है, उनको बैठा दिया जाता है, कुर्सी लेकर के, मेज लेकर के राजा की तरह बैठ जाते हैं। अब वो लोग आते जाएंगे और आने जाने के बाद जो है वो पैसा लिखाते जाएंगे। और उसमें क्या चक्कर क्या है, वो बंदा अपना एक, उसके यहाँ जब शादी हुई है ना तो उसके यहाँ एक रजिस्टर रखा है, वो देख कर आता है कि ये बंदा हमारे यहाँ जब आया था तो कितना दिया था ये पैसा,
وہ वहां से नोट करके आता है। अगर उस दिन तुमने, हालांकि अरे भाई इतना देना है, 50 रुपए पहले वाले हैं, 20 साल के बाद शादी हो रही है, 50-500 बन चुका है, लेकिन वो 50 रुपया ही देगा क्योंकि तुमने हमारे यहाँ 50 रुपया दिया है। तो जो तुमने खिलाया ना वो दावत ठहरी, ना हम जो खिला रहे ये दावत ठहरी। दो की दोनों दावत। क्यों? जब पैसा दिया जा रहा है तो दावत तो रहने की। भाई होटलबाजी हो गई, बस होटल वाले में रेट फिक्स है, इसमें रेट फिक्स नहीं, बस इतना ही फर्क है, वरना दोनों जगह क्या है, खाना खाना है और पैसा देना है। बाद जगह तो दावतें महंगी पड़ती हैं। भाई वो जो बिरयानी खिलाते हैं, अच्छा ताकत कम है, दावत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मालूम है कि मेरा बजट में 100 आदमी को अच्छी तरीके से खिदमत कर सकता हूँ, 500 आदमियों को बुला लिया। पहली मर्तबा तो प्लेट में उन्होंने एक बोटी डाल दी, उसके बाद चावल लेकर घूम रहे सारे लोग, और इतनी मेहनत कर रहे हैं चावल देने में, लीजिए साहब लीजिए साहब, उसमें एक बोटी तक नहीं है। अरे भाई अगर ताकत नहीं है, दावत का मतलब क्या होता है कि आप मेहमान की इज्जत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की सुन्नत है कि मेहमान को आप क्या करें, इज्जत के साथ पेश है। अब आपने बुला लिया 500, नहीं ताकत थी आप 50 बुलाते, भाई क्या जरूरत थी 50 का दे को खिला देते। अब वो अंदर से बार बार उसको खिलाता है कि बोटी निकले, बोटी कहाँ निकलेगी, बोटी है ही नहीं उसके अंदर, वो लेकर के चावल टहलता रहता बेचारा। और ये खुद जो सिस्टम है, ये मालूम आपको डोंगा लेकर के चलने का सिस्टम क्या है, इसके पीछे भी आपको एक बात बताते हैं। हिंदुओं में है छुआछूत। छुआछूत जानते हैं कि एक चीज आपने छू ली तो नापाक हो जाएगी। लिहाजा ये खाना जो बांटने का सिस्टम है ना, इसकी बुनियादी वजह ये है, वो डोंगा होना क्या चाहिए, शराफत और तहजीब, कि खाना आपके टेबल पर रखवा दिया जाए, आपका जो दिल चाहे सालन गोश्त जो भी है उसमें लें और खाएं। चक्कर ये है कि वो डोंगा इसलिए नहीं रखा जाता है, लेकिन मालूम नहीं है आपको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे राज ये है कि वो नापाक हो जाएगा जब बंदा उसमें से हाथ लगा के निकाल लेगा। तो उस वजह से उन्होंने क्या कर रखा है, डोंगे लेके घूमते रहते हैं। अब उनको भी सहूलत हो गई है, जब डोंगा लेकर खुद घूमना है तो उसमें बोटी रखो ही नहीं, अब न चावल लेकर डालते रहते, टहलाते रहते। तो खाया उसने 25 रुपए की चिकन बिरयानी, बेचारे को 100 रुपया जाकर के बिल पे करना पड़ा। और अगर ऑटो से गया है तो 70-80 रुपए वो करे, तो पता चला कि 150 रुपए की बिरयानी पड़ गई, 30-40 रुपए वाली बिरयानी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है ना, ये तहजीब के भी खिलाफ है और इससे हमको परहेज करना चाहिए। एक सलाम कराई होती है, सलाम कराई मालूम है, जब दूल्हा पहुंचता है, आप देखें हर जगह लड़की को लूटने का चक्कर है। जब दूल्हा पहुंचता है ससुराल में तो जब निकाह का हो जाता है तो सब लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो दूल्हे मियाँ बैठ जाएंगे पलंग पर या चारपाई किसी चीज पर। अब वो अपना जो है ना वो नकाब उल्टेंगे, फेरा, वो नकाब उल्टेंगे और उठने के बाद लोग आएंगे, लोग ऐसे 5 रुपया 10 रुपया उसके सर पे घुमाएंगे, डालेंगे। अच्छा, उसमें भी एक साहब लिखते रहते हैं कि कौन कितना डाल रहा है, क्योंकि इनको भी डालना है वहां, तो ये यहाँ नोट करते हैं कि कौन कितना डाल रहा है, इतना ही हमको भी डालना है। अच्छा, वो डालते जाएंगे, फिर आखिर में जब वो पड़ जाएगा, बात तो ऐसी कौमें हैं यूपी वगैरह में कि जब तक उतना पहुंच नहीं जाएगा वो दूल्हा उठकर सलामी नहीं करेगा, उसका नाम ही सलामी है। जब पूरी रकम उसकी जो है हो जाएगी, वो देखता है इतना हो जाए कि हम जो बारात लेकर बस से आए उसका खर्चा हो जाए। उसका चक्कर लड़के का ही रहता है कि जो हम बारात लेकर के 4 बस 3 बस जो भी आए हैं उनका सबका खर्चा निकल आना कहाँ, सलाम कराई में। तब ये हजरत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तब इनका सलामी इनकी शुरू हुई। मैं एक जगह पहुंचा, हमने कहा भाई ये किस चीज की सलामी है? उन्होंने कहा नहीं पहली मरतबा। हमने कहा भाई अगर बहुत तुम्हारे पास पैसा है तो ये जब दूल्हा तुमको सलाम करे गांव वाले पैसा तो देखे कितने पैसे वाले तुम हो। ये आज की सलामी में कौन था ऐसा? तो वो सलामी के नाम पर क्या है, रिश्वत लेना है, चाहे रिश्वत कह लें चाहे भीख कह लें। भीख कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भीख मांगना ये उठ ही नहीं रहे, आप सलाम कर ही नहीं रहे। और बात जगहों पर यह है कि खाना नहीं खाते लड़के यूपी बिहार में। वो जो बारात गया दूल्हा ना, वो ऐसे रोटी तोड़ेगा उसके बाद खामोश बैठ जाएगा। अब लड़की वाले आकर उसके पीछे खड़े, खाओ बेटा खाओ बेटा। अब वो उसको बेटा भैया मुन्ना करके खिला रहे। वो क्या भाई, कोई चीज अगर डिमांड है, मुझे मोटरसाइकिल होना चाहिए। अच्छा, अब वो जो लड़की के रिश्तेदार है, मामू खालू चचा या बाप जो भी है,
तब उसमें से कोई एक आगे बढ़कर कहता है कि अच्छा ठीक है चलो भाई आपको मोटरसाइकिल दे देंगे। अब ये हजरत दूसरा लुकमा तोड़े, फिर बैठ गए नाराज होकर के। अब क्या है भाई, नहीं वो हमको जो फ्रिज होना चाहिए। वो पहले सारी लिस्ट देख लेता है कि जहेज में क्या क्या नहीं है, उसकी डिमांड खाने पे लाके रखता है। ये तो यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। ओ यूपी वगैरह में तो शादी का मतलब लड़की वाला खल्लास हो जाना। अब उसके बाद ऐसे कर करके 4-5 मरता वो बीच में ब्रेक लेंगे खाने में, और 4-5 मरता ब्रेक लेने के बाद उनकी डिमांड पूरी की जाएगी, तब हजरत का खाना पूरा होगा। तो सलामी के नाम पे अलग लूटना है और खाने के नाम पर अलग लूटना, और आखिर में बारात वाले नाराज होकर वापस हो जाना है। ये सारा का सारा चक्कर होता है। ये सब लानत इसलिए है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से क्या है, छटे हुए हैं। अगर रसूल अकरम के तरीके पे चलते तो ये सारी लानत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। निकाह को क्या करो, आसान करो। जितना निकाह आप मुश्किल करते चले जाएंगे उतना दुनिया में करप्शन बढ़ता चला जाएगा। शादी लेट होगी, हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जब शादी लेट होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, करप्शन आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की पॉलिसी ये थी निकाह के बारे में, और आपको हजरत फातिमा का निकाह पहले बता दिया, तब ये सारी बातें शुरू की। इंशाअल्लाह कल से जिंदगी रही तो हम बात करेंगे। तो जिंदगी के बारे बात कर ली, शादी की, अब मरना है। मरने पे क्या क्या हमने चालू किया है, इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।